जैन सर Looking for the traffic, we have 155 junctions. Junctions are all what you call spec locations where we have installed the traffic signals. Two to three immediately show. I cannot describe that. They give us a dump something like 2 months back, 3 months back, they will give a dump. If it is like added a module, it's like alert system. So alert is generated, alarm is here, silent time is generated. It's a pleasure meeting all of you. I'm sure it is going to be a great Bharat Darshan for you. Apart from UP, where are you all going? Going to Agra and then Then back. I'm sure you will enjoy this trip, and this is give you memories for rest of your life, because when though you will keep seeing the country and maybe the world during your future career, but as a group with so many people and batchmates, seldom does a person get a chance to go. But normally people visit different places with their families, right? Now, since you all are together, you will enjoy a lot more. I'm so sure about it. And tomorrow, and today, tomorrow, and day after, you will have a great time in Lucknow. We will make sure that you see every bit of Lucknow during these 3 days. The two places I have arranged right now are because they are highly advanced places as far as policing is concerned. Therefore, I want you to visit them. But apart from that, also Lucknow as a city has a lot to offer in terms of food. So at times in the evenings, you may want to try different cuisines and not take the dinner in police lines. But this is what we used to do when we were in academy. We have got limited time and limited stomach. So if we eat at one place, we can't eat at the other place. So you must try different places, take them around, take them to all the places. सेफ्टी इमरजेंसी सर्विस है ऑल यहाँ हमारा हेडक्वार्टर है 70%, जहाँ लैंड होती है, या दो हमारी ब्रांचेज हैं गाजियाबाद और प्रयागराज, वहाँ 15% लैंड होती है। इसके अलावा सोशल मीडिया के द्वारा भी आप सहायता ले सकते हैं। और जो क्राइम रिपोर्ट कर रहे हैं हम उसके फर्स्ट रिस्पॉन्डर। So this is the Lucknow location. We have two other backup policies and operation centers, which is at Prayagraj and Ghaziabad. And that work as again as a backup, and ये सबसे बड़ा सेंटर है, हेडक्वार्टर है। वो दोनों थोड़े छोटे हैं।
So citizen जब भी 112 डायल करता है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं or any kind of harassment, female harassment, domestic violence, murder, reporting any crime or distress callers. So we are the first responders. Apart from this police services, other services are also integrated with 112. That is fire, railway, 181, 1090. These are the services which are integrated. Medical emergency, ये सारी services हैं जो 112 से integrated है. I mean कोई भी caller इन services के लिए भी call करेगा तो we are the one who can respond and get the help delivered to the citizen's place. साथ एम्बुलेंस की सहायता चाहिए। Action करनी चाहिए, they are okay. This is how we. Response time. How long does it take to give a response? It is training around 9 to 10 minutes. That varies again situation to situation. So overall, it is training around 9 minutes to 10 minutes. That's how it went. Phone, we have the messages services also. Text message, where they can use the text message service. We have this separate number. They can text us. Then also we can get the help delivered to the citizen place. उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, दे कैप्चर द इंफॉर्मेशन की व्हाट व्हेन वेयर हैपेंड एंड ऑल दैट। फिर उस पे गाड़ियां जो भेजनी है वो हम यहाँ से करते हैं डिस्पैचिंग, लेकिन अब उसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब वो चीज़ ऑटोमेटिक होगी, मीन्स जैसे ही वो लड़कियां वहाँ पर कॉल आपकी पूरी कैप्चर कर लेंगी, आपका सारा इशू नोट कर लेंगे। स्थितियों में लॉ एंड ऑर्डर, या फिर जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पे डिसीजन आ रहा था, या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे जो विरोध चल रहा था, उसके संबंध में पैरामिलिट्री फोर्सेज और स्टेट की जो और पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए उनकी गजटेड ऑफिसर यहाँ मौजूद रहते थे जो मॉनिटर करते थे हर घटनाओं पे। सीएम, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी या एडीजी या लोग सीधे जुड़ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। Just because of we have our dedicated link lines. नेटवर्क जहाँ हमारा नेटवर्क है वहीं पे उनको आना पड़ेगा। दैट इज ओवर DCR, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, और ROIP सेंटर, दैट इज in each and every district. Apart from them, all ADG zones have VC facility in their office through this node. All IG range office also have this facility. नहीं, हम ही लोग मतलब जो हमारे साथ के लोग हैं वही करते हैं। कोई किसी में एक्सपर्ट है, कोई किसी में एक्सपर्ट है। हमारी गाड़ी है जो डिवाइस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एमडीडी, ये इसमें आप काम कर रहे हो नॉर्मल वे में तो कोई इशू नहीं है, खराब नहीं होता। इसके ऊपर हमारा इवेंट आता है, इसी में वो लोग एक्नॉलेज इन रूट अराइव करते हैं, देन PR फाइल करते हैं इस डिवाइस की। ये गाड़ी के अंदर लगा रहता है, इसी का चार्जिंग मोड भी गाड़ी में है, वहीं पे चार्ज होता है। सेम वे में वायरलेस सेट है लगा, वायरलेस सेट है वो MDT का क्रेडिल है, उसमें वो फिट रहता है MDT इस तरीके से। और इसमें PA सिस्टम भी है, अगर पब्लिक अनाउंसमेंट कुछ करनी है आपने तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. 3 vehicles in each vehicle. And on bike, 2 persons are there. They can take this, remove this if they require to the location of incident with us. So for future use, we can use those photos and videos as per SOP. They have to be in this vehicle every time. तो लोग हमेशा रहेंगे। एक्चुअली में इनका पेट्रोलिंग चार्ट बना हुआ है, ये पेट्रोलिंग करते हैं, कुछ स्थानों पे आधे घंटे के लिए फिक्स रहते हैं, फिर मूव करते हैं। इस बीच अगर इवेंट आ गया तो जाएंगे, इवेंट अटेंड करेंगे, फिर अकॉर्डिंग पेट्रोलिंग चार्ट के उस स्थान पे आकर के फिर से पेट्रोलिंग करेंगे। ये 2 व्हीलर का है,
हैंड हैंडल डिवाइस है, इट्स जस्ट ए साइज ऑफ मोबाइल फोन. सो बिकॉज बाइक पे इतना बड़ा डिवाइस लेके चलना इजी नहीं है, सो दे विल यूजिंग दिस थिंग एंड ए वन हैंड हैंडल्ड वायरलेस डिवाइस. और जैसा कि इसमें हमने वी गिव देम मोबाइल फोन, टैब, देन दिस वायरलेस सेट, बट इन दिस डिवाइस दे हैव बोथ द फैसिलिटीज, वॉइस कॉलिंग एज वेल एज दिस इवेंट मैनेजर. जिसमें केट सीट, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा और क्राइम सीन प्रोटेक्शन किट रहता है. और एक हेड कॉन्स्टेबल. Yes, water, fire, dust, and break resistant. So these are the rugged devices. ये प्रोसेस का 112 परियोजना में हार्दिक स्वागत है. मेरा नाम अनुराग तिवारी है. मैं तकनीकी सलाहकार हूँ यूपी 112 का. मैं दुनिया की एक टॉप फर्म अर्स्ट इंडिया में टेक्निकल मैनेजर हूँ. तो इससे पहले हम यूपी 112 की टेक्नोलॉजी पे हम काम करें या बात करें, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा. आप ज़्यादातर चीज़ें 112 के बारे में देख ही चुके होंगे, बट स्टिल ये आपको पूरा हिस्ट्री हमारे शुरुआत से लेके अंत तक बता देगा ये वीडियो. आपातकालीन परिस्थिति के लिए एक आपातकालीन नंबर 100 के साथ एक एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू की. जन सुरक्षा एवं सुविधा के लिए यूपी 100 24 घंटे 7 दिन पुलिस, फायर, मेडिकल व आपदा प्रबंधन संबंधित आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक प्रतिक्रिया केंद्रीकृत संपर्क केंद्र था, जो कि टेक महिंद्रा और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया था. कॉलर अपनी समस्या को वॉइस कॉल, SMS, 100 पर कॉल करने पर सीओ कॉल को उठा लेगा. वे बड़ी सौम्य तरीके से समस्या को धैर्यपूर्वक सुनते हैं. जरूरत पड़ने पर आपके बात से संवादित कर इसको प्रदान हम आपकी का सहायता कर सकते आदि भाषाओं में बात कर सकते हैं. वे समस्या को सुनकर ELS और NVS तकनीक के माध्यम से सटीक घटना स्थल का पता लगाकर TO या प्रेषण अधिकारियों को कॉल निर्देशित कर देती है. एक मर्डर हो गया है, भी है. अच्छा, PRP हमारे देश में स्टैंड पे जा रहा है. TO स्थिति के अनुसार PRP, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस या आपदा प्रबंधन टीम को घटना स्थल पर भेज देते हैं. कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक ही घटना के लिए कई एजेंसियों को नियुक्त करना पड़ता है. प्रतिक्रिया समय आमतौर पर शहरी क्षेत्रों के लिए 15 मिनट और ग्रामीण स्थानों के लिए 20 मिनट है. कई गलियों में 4 पहिया PRP न जा पाने के कारण 2 पहिया PRP को यूपी 100 सेवा में शामिल किया गया. 26 अक्टूबर 2019 को यूपी 100 का यूपी 112 में प्रतिस्थापन किया गया. भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इमरजेंसी सिस्टम घर से ही इतना सराहनीय कार्य करते हुए एक मिसाल कायम कर रहा था. अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन करते हुए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी शिद्दत के साथ खाकी का फर्ज निभाया, ये देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा. मानवता, जिम्मेदारी, कर्तव्य निष्ठा
और जज्बे की भावनाओं से लैस 112 के जांबाज योद्धाओं को पूरा देश सलाम करता है। हर पहर, हर जगह 112 है आपकी सेवा में तत्पर। भारत के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा टेक्निकली एडवांस और फाइनली भारत के नंबर 1 ERS में यहाँ पे आपको अच्छा लगा होगा। आपको यहाँ पे काफ़ी नई चीज़ें देखने को भी मिली होंगी। तो हमारा सबसे बड़ा एज जो है हमारे ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी पे है। तो अगले 10 मिनट में मैं आपको टेक्नोलॉजी की जो निटिगिटीज़ हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं, उन पे ले जाना चाहूँगा, उन पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, जिससे कि आप जान सकें कि हमारे बैकबोन क्या है और कैसे वर्क करती है। 112 नंबर टोल फ्री नंबर, इसको वो नंबर ही यूज़ किया और इसलिए कि जैसा कि इन्होंने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर 112 यूज होता है। पहले हमारे यहाँ 100 था जो पुलिस का हेल्पलाइन था। क्योंकि हमारा अन्य विभागों से भी इंटीग्रेशन है, जैसा कि GRP है, फायर है, मेडिकल है, 1090 है, 181 है, उत्तर प्रदेश रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, SDRF है, और आने वाले समय में हम स्मार्ट सिटी लखनऊ से कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी अपेक्षित है। तो ये 112 के माध्यम से हम सभी अन्य विभागों को भी के कॉल अटेंड करके संबंधित से हम आपको सहायता प्राप्त करें। सर ये जैसे USA में है 911, वो 911 को रिजल्ट करता है, तो वैसे ही 112 का कुछ। हाँ, और ज़्यादातर कंट्रीज में, विशेषकर यूरोपियन कंट्रीज में 112 ही है। USA में 911 है, तो उसी को फॉलो करते हुए हमारे पूरे MHA की गाइडलाइन के अनुसार हमने भी 112 को ही अडॉप्ट किया। Shown in the slide that almost 32% of the calls that you receive are हेलो सर, ये अभी मेरे स्लाइड में लिखा कि 32% जो कॉल्स है वो फ्रॉम रूरल एरियाज आ रहे हैं, तो सर उसका इश्यूज को कैसे आगे टैकल करना है? हाँ, जैसा कि अनुराग ने बताया कि हमारा रिस्पांस टाइम जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने रखा था 20 मिनट का रूरल का, और अर्बन का 15 मिनट रखा था। रूरल से 32% जो कॉल्स आती हैं उसमें ज़्यादातर डिस्प्यूट्स के होते हैं, अटेम्प्ट मर्डर्स के होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, और उसमें हमारी PRV का रिस्पांस करीब 10 मिनट का है वर्तमान में। उसमें कॉल इवेंट क्रिएशन का 2 मिनट का समय ऐड नहीं है, तो हम 10 मिनट 12 मिनट में उनको सहायता उपलब्ध कराते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस या वुमेन रिलेटेड इवेंट्स में महिला PRV भी अटेंड करती है। Sir, apart from technological aspects, I want to know what are the difficulties faced by the commanders and the personnel who are working in the field. कमांडर्स जो जैसा कि हम लोग उनसे वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ज़्यादातर फर्स्ट कोई भी जैसे जमीन रिलेटेड कॉल्स भी हमें मिलती हैं। जैसे 2 व्यक्तियों का अगर डिस्प्यूट है तो पुलिस या हमारी PRV जा करके उनको सॉर्ट आउट कर सकती है, लेकिन ज़मीन से रिलेटेड है उसमें पुलिस कुछ कर नहीं सकती, वो हैंड ओवर कर देती है थानों को। बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं, आपको ताज्जुब होगा कि अभी स्नेक वो कॉल करके कहते हैं कि हमारे गांव घर में सांप निकला है, आप इसको पकड़ो। पुलिस वाले तो ऐसे इस तरह की कोई ट्रेनिंग आपको भी नहीं मिली होगी, ना हमें मिली है। इस तरह के बहुत से इवेंट्स आते हैं, उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हमसे है। हर तरह की परेशानियों के लिए वो 112 को कॉल करते हैं और ज़्यादातर हम उनको सॉल्व करते हैं। 80% मामले हम वहीं मौके पे ही सॉल्व। पुलिस नहीं पहुंचने से पहले तो 112 के ये कमांडर्स और सब कमांडर्स पहुंच जाते होंगे ना इस में, तो उन्हें भी ये क्राइम सीन मैनेजमेंट ये सब सिखाए जाते हैं। हाँ, उनकी 15 दिन की ट्रेनिंग है। ये जो हमारे पुलिस पर्सनल है 112 के,
उनकी 15 दिन की फ्रेशर ट्रेनिंग है और रिफ्रेशर 7.5 दिन की है। ये फर्स्ट जब वो आते हैं हमारे 112 में तो उन्हें 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। एवरी ईयर 7.5 दिन की ट्रेनिंग रिफ्रेशर उन्हें दी जाती है। बंद हो गया। पूरा पकड़ा जाएगा ना। नहीं लेकिन बॉडी में ये देखो जो है लगा। अनिल